اگر کام نہیں کروں گی تو پھر فیملی کو مس کرتی رہوں گی. لائک یو نو آئی فیل ایٹ ہوم بھی تو اپنے آپ کو کرنا ہے نا, تو آپ انوالو ہو گئے یہاں کی چیزوں میں تو ہی آپ کرو گے نا چیزیں. تو پھر ہم لوگوں کی اس وقت اپنی بزنس تھی, تو سجاد کو میرے ہسبینڈ سیٹ کہ آپ ایسے کرو کہ آپ میرے ساتھ کام کرو تاکہ یو نو یو فیل لائک یو کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ. اور پھر میں نے اپنا ہی اسٹور کھول لیا, ڈرائی کلینک, اینڈ آئی یوز ٹو ورک دیر. اچھا, اس کے بعد پھر دین وی وینٹ تھرو اے ٹریجڈی, اینڈ جو ٹریجڈی کے بعد آئی نیڈیڈ اے چینج. دین آئی گوٹ انٹو ریئل اسٹیٹ, اور تب سے میں ریئل اسٹیٹ میں کرتی آئی ہوں. لیکن میں نے کام اوبویسلی کہ یو نو کام بھی کیا ہے, لیکن گھر بھی سنبھالا ہے, فیملی بھی سنبھالی ہے, سب کچھ کیا ہے, دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیا ہے. ورکنگ وومن, آئی ڈونٹ تھنک واٹ از اے ورکنگ وومن. آپ باہر کام کرو یا اپنے گھر میں کام کرو, یو ورکنگ اینی وے, رائٹ. صرف یہ کہ ہاں اکنامکلی آپ وہ کر رہے ہو, ایک طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہو وین یو ورکنگ آؤٹ سائڈ آلسو. کرنے کو تو ہم ڈبل کام کر رہے ہیں, ایکچولی گھر کے بھی کام کر رہے ہیں. یہی میرا کوشچن, کیونکہ پاکستان کی لائف کافی ایزی ہے. لائک ہمارے اپنے اگر پچھلے ملکوں میں دیکھا جائے, پاکستان, انڈیا, وہاں لائف ہماری ایزی ہوتی ہے. اگر ہم ورکنگ ویمن ہیں تو ہمارے جو باقی سارے جو معاملات ہیں وہ ہم سم ہاؤ مینیج کرا لیتے ہیں کسی نہ کسی سے. لیکن جب ہم یہاں کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل ڈیوٹی دیکھنی پڑتی ہے, جیسے کہ آپ ابھی خود بھی بتا رہی ہیں کہ ڈبل ڈیوٹی ہے. سو آپ یہاں کی ویمن کو ڈیولپنگ کنٹری کی ویمن سے کس طرح سے ریلیٹ کریں گی, کہ کیا انہیں بتانا چاہیں گی کہ ہم کس طرح کی یہاں لائف دیکھتے ہیں, اور پھر بھی ہم تھینک فل ہوتے ہیں کہ ہر چیز, اور ہمیں لگتا ہے ہماری رسپانسبلٹی ہے اگر جاب بھی کر رہے ہیں اور گھر بھی مینیج کر رہے ہیں. دیکھو, ہم یہاں کے اور وہاں کے حالات ایکچولی کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو سچویشن فرق ہے. یہاں کے ایک سسٹم اور ہے, یہاں پہ ہم کام تو کر رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑے ایکچولی سمبڈی ایکچولی سیٹ کے وہاں پہ کپڑے دھونے کون سے مشکل ہے, مشینوں میں ڈالنے ہیں, یو نو, یا کھانا پکانا کون سا, لائک ریئلی. اگر یہاں پہ میں ابھی یو نو فیملی آف مائنڈ وینٹ تھرو کرونا, ان سب کو کرونا ہو گیا, تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ شکر ادا کرو کہ آپ کے پاس نوکر تھے وہاں پہ کھانا پکا کے دینے کو. یہاں پہ جن کو کرونا ہوا ہے انہوں نے اٹھ کے پہلے خود ہی خرید کے بھی لے کے ان کو کسی لائک فرینڈس, چلو فرینڈس نے لا کے کچھ دے بھی دیا, کوئی گھر میں سبزی دے بھی دی, یا کچھ آپ نے پکانا تو خود ہی, آپ نے اٹھ کے چلو دوستوں نے کھانا بھی لا دیا, تو آپ نے اٹھ کے چائے تو خود ہی بنانی ہے. تو یہاں کی لائف کو اور وہاں کی لائف کو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ٹو اسٹارٹ وتھ. سیکنڈلی, وہاں پہ میرے خیال سب سے بڑی جو چیز ہمیں ایز ویمن ہمیں جو دھیان کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم انڈیپینڈنس تو کرتے رہتے ہیں. انڈیپینڈنس یہاں کی عورتوں کا ہاں بہت ہے, لیکن ساتھ اس کے مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں. دیٹ واٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. اور ہر چیز کی نا ایک پرائس ہوتی ہے, دیٹ یو ہیو ٹو پے آلسو. اب اور ہم ہر چیز کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. لائک آئی ایم سیئنگ کہ جو اب لوگ کہتے ہیں جی ورکنگ وومن, لائک دیر واز اے ویری گڈ جوک کہ کسی نے ایک عورت کو پوچھا کہ اچھا بھی تم کیا کرتی ہو سارے دن. اس نے کہا کہ میں صبح اٹھتی ہوں, پھر میں بچوں کو ناشتہ, میں خامد کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں, پھر میں بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں, پھر میں بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتی ہوں, پھر میں آ کے اپنے گھر میں کھانا پکاتی ہوں, پھر میں آ کے برتن دھوتی ہوں, پھر میں آ کے گھر کی صفائی کرتی ہوں, پھر میں یو نو لنچ تیار کرتی ہوں, پھر میں بچے لے کے آتی ہوں, پھر میں بچوں کو پڑھاتی ہوں, پھر میں اس کے بعد میں کھانا لگاتی ہوں, پھر میرا خامد آ جاتا ہے, پھر ہم کھانا کھاتے ہیں, تو پھر ہم یو نو پھر میں سارا کچن صاف کرتی ہوں, پھر میں سارے کپڑے صاف کرتی ہوں, پھر میں کپڑے بھی دھوتی ہوں, پھر میں کپڑے بھی طے کر کے رکھتی ہوں, اور پھر میں سارا کچھ کرتی ہوں. تو آدمی کہتے ہیں یو ڈونٹ ورک, لائک یو نو. سو دی تھنگ از, تو کام ہم یہ بھی کام کر رہی ہیں عورتیں, یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, لیکن ہم ورکنگ وومن ان کو کہہ دیتے ہیں جو باہر نکل کے جاب کرتی ہیں. وہ بھی ضروری ہے, وہ جو whoever can handle it. میں آئی فیل کہ جب میں باہر میں جاب کر رہی ہوں تو میں گھر کی چیزیں جو کر رہی ہوں, میں ایکچولی مور آرگنائزڈ, سو آئی ایم ڈوئنگ بوتھ دا تھنگس, یو نو. بٹ آئی مین ہم نے اپنے پہ ڈبل رسپانسبلٹی, آپ کال لے لو. تو اور پاکستان میں یہ ہے کہ نوکر ہیں, میں تو کہتی ہوں وہ بڑی سہولت ہے, مجھے تو بڑی یاد آتی ہے نوکروں کی یہاں پہ. تو لیکن وہاں پہ بھی نکل کے عورتیں کام کرتی ہیں, جاب بھی کرتی ہیں, وہ بھی کرتی ہیں. سو you know we are all contributing towards society. That's the main thing کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پال رہے ہیں, اپنے گھر کو کس طرح سے سنبھال رہے ہیں, ہم باہر کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور نائلا, یہ 2021 انٹرنیشنل ویمن ڈے کے لیے جو تھیم بنائی گئی ہے وہ ہے چوز ٹو چیلنج. بڑا ایک ٹرکی انہوں نے یہ لائن اس سال کے لیے پک کیا, چوز ٹو چیلنج. اب آپ کی نظر میں اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں, لائک کیا ہے یہ چوز ٹو چیلنج لائف کے لیے؟ I don't know what are the challenging. لائک ڈو یو تھنک کہ عورت کو ابھی بھی 21ویں صدی میں بھی چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور خود کو ابھی بھی منوانے کی ضرورت ہے؟ دیکھو, یو نو I've been here for 40 years and I'm older. I know younger generation کی سوچ تھوڑی مختلف ہے, جو میری سوچ ہے وہ مختلف ہے.
I've worked all my life with my husband. I've been involved in everything. I've had the freedom to do whatever I wanted to do. उसके साथ साथ मैंने घर भी संभाला है, मैंने घर के काम भी किए हैं अपने, which I feel कि ये मेरा घर है तो मैं उसके सारे तो चैलेंज किस बात का है? हमने जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमने करना है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. अगर हम बच्चे अच्छे पाल रहे हैं तो वो भी हमारा काम है, अगर हम घर अच्छा संभाल रहे हैं तो वो भी हमारा काम है. बच्चे पहचाने जाएंगे या फिर लोग मुड़ के ये कहते हैं ना माँ ने क्या बच्चों को तबीयत दी है, तो ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? तो चैलेंज किस बात का है? चैलेंज हमें अपने आप को ये देना है कि ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. हम औरतें की जो मैं देखती हूँ कि जो सारा टाइम खाविंदों की बार बुराइयां करनी, सासों की बार बुराइयां करनी, लाइक इस तरह की चीजें. लेट्स चैलेंज आवरसेल्व्स टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स. आगे हमने और क्या चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? दुनिया को क्या हमारे से लेना देना? ओके, जब आप वर्किंग वुमेन आप हैं तो आपने अपनी लाइफ में क्या हर्डल्स जो हैं वो फेस किए अपनी जिंदगी में, कि जब आप एक बीइंग अ वर्किंग वुमेन और एक सक्सेसफुल आप जब वे की तरफ जाते हैं तो आपने अपनी पूरी जर्नी में क्या हार्डशिप्स देखी हैं? काम के लिहाज से काम के लिहाज से तो एक्चुअली मैंने तो कोई नहीं. आपको लगा कि नो ये एक बाइस्ड वर्ल्ड है कि आप जो मर्द हैं उनको प्रायोरिटी पे हमेशा रखा जाता है और जो फीमेल है हमेशा उसको पीछे कर दिया जाता है? मैंने तो कभी ऐसे फील नहीं किया. देखो ये सारी अपनी अपनी कॉन्फिडेंस की बात है और अपनी अपनी एबिलिटी की और अपनी अपनी नॉलेज की बात है. अब शुरू में जब मैंने आज से 25 साल पहले शुरू किया था मैंने रियल एस्टेट, तब नई नई चीज थी ऑब्वियसली. मे बी मेरे तब शुरू में मुझे आई फेल्ट कि थोड़े से पाकिस्तानी मर्द इनसिक्योर हो जाते थे, थोड़े से हो जाते थे, फिर मुझे कहने लग पड़ते थे मुझे भी बड़ा मालूम है, मैं भी बड़ा पाकिस्तान में ये काम करता है. लेकिन जब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो एबिलिटीज है, वो फिर कन्विंस हो जाते थे और फिर आराम से मेरे साथ काम करते थे. लाइक मैं उनको घर दिखा रही हूँ, उनको घर बेच रही हूँ, दे बिलीव्ड व्हाट आई वाज टेलिंग देम. ये आपका अपना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी चीज को कैसे, और अगर आपकी एजुकेशन सही है और आप अपना सही काम कर रहे हो तो हमें अब आप यकीन करेंगे सजाद वाज इन पाकिस्तान और मैंने यहाँ पे शौकत खानम का फंड रेजर किया. उसी तरह से लोगों ने काम किया, उसी तरह से लोगों ने दिया. और हालांकि हम उस पे कर रहे थे, व्हाट्सएप पे कर रहे थे, हम उस पे भी नहीं कर रहे थे. लाइक वी कुडंट गेट टुगेदर और एनीथिंग. I've never felt any challenge. I feel कि I'm a confident woman and I know what I'm doing. And other people have taken me on that same level. Even men take me on the same, Pakistani men take me on the same level. लोगों को कई औरतें कहती हैं जी हमें वो हम करते हैं तो मर्द हमें गलत तरीके से लेते हैं या मर्द हमें गलत बातें करने लग पड़ते हैं या लाइक उनको लाइन देने लग पड़ते हैं. ऑनेस्टली मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं की ऐसी चीज, क्योंकि मैं खुद ही इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगला मुझे उसी लेवल पे लेता है. जब आप कॉन्फिडेंटली किसी आदमी से बात करोगे तो कोई आदमी आपको क्यों बेवकूफों वाली बात आपसे बातें करेगा? और अगर कोई बेवकूफों वाली बातें करेगा तो आप उसको चेक कर लो. आपको हैंडल करना, घबराने की क्या बात है? उसे कह दो कि भाई जैसे कोई फेसबुक पे किसी ने मुझे लिखा हाय ब्यूटीफुल, मैं कह नो प्लीज आई ब्लॉक यू इफ यू टॉक स्टूपिड विद मी. डिसेंसी रखो अपनी बात करने में. आई डोंट वांट दिस रिडिकुलस कॉम्प्लीमेंट्स. आई नो आई एम ब्यूटीफुल, आई डोंट नीड यू टू टेल मी, लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक हाँ आपकी एंडोर्समेंट की मुझे बिला वजह जरूरत नहीं है. ऑलराइट, एक औरत का एजुकेटेड होना कितना इंपॉर्टेंट है फैमिली और काम के एनवायरनमेंट में? एजुकेशन तो हर हाल में जरूरी है. देखो अब इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है, जमाने बदल गए हैं. अब देखो ना आप ये देखो कि मैं एजुकेशन, अब आजकल दुनिया कितनी बदल गई कि अब हम रेडियो पे बात कर रहे हैं और हम साथ वाईफाई पे हम इस पे बात कर रहे हैं, हम साथ फेसबुक लाइव कर रहे हैं. हमें ये सारी चीजें जानने के लिए एजुकेशन का तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि आपको एजुकेशन नहीं होनी चाहिए या औरतों की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए. इसकी तो कोई डिस्कशन ही नहीं है. आगे जिंदगी में बढ़ना है और सिर्फ हमें अपने लिए ही नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने मुल्क के लिए भी औरतों को एजुकेशन देनी जरूरी है. औरतों को अगर आप एजुकेशन समझो, आपने 50% अपने कौम की एबिलिटीज खत्म कर दी. अगर औरतें ज्यादा हैं, 60% आपके मुल्क में औरतें, तो आपने 60% अपने मुल्क की एबिलिटीज खत्म कर दी हैं. तो एजुकेशन तो कौमों को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और फिर उसको दूसरे लेवल पे ले आओ तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है. बिल्कुल ठीक है. और राइट, अभी एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. जी हेलो. हाँ जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बढ़िया जी. जी आज विमेन डे, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई कमेंट आपका? हाँ जी, मैं वही समझने लगा. जड़ है हर एक रिश्ते दी जी, जड़ है हर एक रिश्ते दी, हर बेड़ा कन्या औरत ने जी. वाह वाह, बहुत अच्छा. पानी जाता औरत ने है, रब
ਦੀ ਜੰਮਿਆ ਔਰਤ ਨੇ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨ ਡੇ। Oh, thank you so much. Very good. ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ 1848 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा 1848 ਵਿੱਚ। जी जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਮ ਫੂਲੇ जी जी जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਜੋ। जी जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ। जी जी जी। देखिए और औरत जो है उन्होंने तो हर फील्ड के अंदर अपना नाम बनाया और काम किया है और ऑफ कोर्स इसीलिए तो तारीफ हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और अपना कमेंट ऐड कराया, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब कॉलर हमारे साथ है और कितना आपने सुना है जबरदस्त था उन्होंने, Very nice. औरत की शान में जो शेर पढ़ा बहुत ही आला जबरदस्त। एनीवेज अभी जो हम बात कर रहे थे कि औरत का एजुकेटेड होना कितना जरूरी है फैमिली और उसके लिहाज से, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एजुकेशन। आप क्या फॉलो करिए जो पाकिस्तान में चल रहा है औरत मार्च? औरत मार्च, देखो औरत को राइट्स की जरूरत है। हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में, हमारे पाकिस्तान में हम लॉज सारे मौजूद हैं, ये नहीं है कि लॉज नहीं मौजूद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई हुई है कि जहाँ पे औरतों को हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया हुआ है। तो उनकी थोड़ी सी समझो, और ये इसमें बहुत चीजें काउंट होती हैं, इसमें हमारे पॉलिटिशियंस काउंट होते हैं, इसमें हमारे मौलवी काउंट होते हैं जिन्होंने काइंड ऑफ अपनी चीज को बढ़ाने के लिए औरतों को पीछे कर दिया है। जो जुमला है उससे मुझे क्योंकि जो माय क्या है ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो एक्चुअली उन्होंने ट्रांसलेट किया फ्रॉम माय बॉडी माय राइट्स। वो अमेरिका की अबॉर्शन की फाइट का है। वो उन्होंने अबॉर्शन के लिए ये मूवमेंट यहाँ स्टार्ट की थी और ये जुमला यूज किया, तो उन्होंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। मेरा ख्याल है कि इट डजंट रियली कवर ऑल दैट वुमेन आर फाइटिंग फॉर। इस जुमले को थोड़ा सा उनको और बड़ा करना पड़ेगा, जहां पे उनकी बाकी चीजें भी उसमें शामिल हो सकें। हम जिस्म की बात में ठीक है कि आप रेप, मतलब जिस्म जब आप सोचते हो तो आप रेप का सोचते हो, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक है कि अच्छा रेप का है या फोर्स्ड मैरिज का है, इस तरह की चीजों का है। लेकिन कर देना या फिर जैसे कि कुछ इलाकों में कुरान के साथ शादी, हाँ, वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उससे आगे भी हमें चीजें चाहिए। हमें आगे जो इक्वल राइट्स चाहिए, हमें काम की उसमें एजुकेशन में हमें राइट्स चाहिए। मगर इक्वल राइट्स में मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं झाड़ू लगा रही तो तुम भी मेरे साथ झाड़ू लगाओ। मैं उस थिंकिंग की नहीं हूँ कि, लेकिन ये जरूर है कि हाँ औरत को भी एजुकेशन का इक्वल राइट होना चाहिए। अगर औरत और बन रही है, पाकिस्तान में चेंज भी बहुत आया है, और लेकिन एक सर्टेन क्लास में आया है, एक सर्टेन उसमें आया है, बहुत अभी भी नीचे। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली बहुत ज्यादा हैं। हमारे प्रॉब्लम से एक तो लड़कियां खुद भी नहीं पढ़ना चाहती, उनको खुद होता है कि शादी करनी है। आप अगर मेजोरिटी फेसबुक पे अगर आप देख रहे होते हैं औरतों को, तो मैं देख रही होती हूँ इनका सिर्फ जिंदगी में सिर्फ शादी की है। आपको नहीं लगता ये हमारी सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है, क्योंकि हर चीज का अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो शादी से जोड़ दी जाती है। अगर आपने डिग्री ले ली, चलो जी अब इसकी शादी कर दो, ज्यादा खूबसूरत है, चलो जी इसकी शादी कर दो, अगर फीचर जरा एनहांस नहीं हो रहे, शादी कर दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, फेस पे एक्नीज आ गए तो शादी कर दो, शादी के स्किन ठीक कराओ, इसकी वजह शादी से कौन करेगा है। जी जी। तो ये छोटे छोटे टैबूज हमारी सोसाइटी ने लगा दी, जिससे लगता है कि बस शादी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखो ये चेंज ना ये यंगर जनरेशन लाएगी। ओल्डर जनरेशन की तो सोच यही है ना कि भाई बच्चे की शादी कर दो, बेटी की शादी जल्दी कर दो, और लड़के की शादी वो जब कमाना शुरू कर दो उसकी शादी कर दो। अब चेंजेस तो आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रहे हैं। अब पहले होता था, मेरी जो अम्मी की जनरेशन थी तो वो 20-20 साल का एज डिफरेंस होता था। मेरी जनरेशन में अराउंड 10 इयर्स का एज डिफरेंस वाज फाइन, कि आदमी जो है वो कमाता खाता हो तो औरत की शादी कर दो, लड़की ने तो कुछ नहीं ना करना, लड़की ने तो घर ही संभालना है। अब यंगर जनरेशन में आई है तो बराबर के हो गए, अब वो केमिस्ट्री डेवलपमेंट हो गया। तो मेरी एक फ्रेंड ने बल्कि बड़ी मजे की बात की, वो अपनी बेटी को कहती थी तुम यू नीड टू गेट मैरिड। तो वो कहती है कि मॉम आई हैव नो पता नहीं क्या, नो केमिस्ट्री, नो क्लिक, देन आई हैव टू हैव अ क्लिक विद हिम, और पता नहीं कुछ ऐसे करके। तो मुझे कितनी नल है की मतलब है, मैं कहते वो मतलब है जरा सन नहीं पता। like different generation, different things, so things are changing. अब लड़कियां अपनी मर्जी की, पेरेंट्स ने, हमारी जनरेशन जो आई है, मेरा ख्याल है कि वी आर इन दैट वे। देखो ना आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आते हैं ना, अब एकदम रश नहीं कर सकते। आपकी सोसाइटी जो है,
अब हम मेरी जनरेशन में ये बात अंडरस्टैंड हमने कर ली है कि बेटे ने किस लड़की को, पहले तो ये होता था कि गलत लड़की ने लड़का फंसा लिया। अब वो चीज नहीं है। अब हाँ कि बेटे ने पसंद किए लड़की, उसकी शादी कर दो, लड़की ने लड़का पसंद किए शादी कर दो। बल्कि लोग एक दूसरे को कहते हैं कि यार बच्चे तुम्हें खुद नहीं कोई पसंद आया, हमने कहाँ से रिश्ता ढूंढना है। इट्स सो मच ईजियर, थिंग्स आर चेंजिंग, दे डू नीड टू चेंज अ लॉट, दे डू नीड टू चेंज मोर। मगर मेरा ख्याल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लड़कियों को अपना करियर बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी जिंदगी में कोई भी, ऑनेस्टली इफ दे वांट टू बी समवेयर इन लाइफ, इफ दे वांट इक्वल राइट्स इन काम में, प्रोफेशन में, सोसाइटी में चेंज आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। जब जैसे जैसे और लड़कियां बाहर निकलेंगी, काम करेंगी और कॉन्फिडेंट होंगी, एंड दे विल नो कि गलत आदमी को वी नीड टू पुट हिम इन हिज प्लेस, थिंग्स चेंज। जैसे यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे भी ऐसे ही चेंज आया ना। जो माइंड है वो एक्चुअली एक चेंज लेकर आ सकता है, और पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज में सब जगह चेंज आ रहा है। और राइट, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगी कि जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ कुछ स्टीरियोटाइप जो है वो अटैच हो जाते हैं, वो क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो वो डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो दबंग 99.5 FM। चलो आज साथ आज तुम्हें तो देखना है, तुम्हें हमारा जो एक्चुअली जिसे लाइव करना था, ये मदिया है, जनाब मदिया मसूद। आपने अपनी इंट्रोडक्शन तो दी नहीं, मेरे ये जो मुझे लोग देख रहे हैं उनको बताओ। जी मैं मदिया मसूद हूँ, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि नाइला बरकी इज विद मी, और वो आज के स्पेशल डे पे कमेंट कर रही है। थैंक यू सो मच जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुने नाइला ने कितने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत मुश्किल होता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और लोगों को बताना, क्योंकि आई बिलीव कि जो आपकी हार्डशिप्स है ना, अगर आप लिसनर से शेयर करें ना, बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जो इंस्पिरेशन है, जो कि नए हैं, जिनको इसी तो हम जैसे लोग ना हिम्मत हारते हैं कहीं पे, लेकिन जब वो किसी को देखते हैं ना सामने के किसी ने इतनी मेहनत की और अपना नाम बनाया इवेंचुअली, तो वो एक हिम्मत सी मिलती है। वेरी स्वीट, थैंक यू। वेलकम बैक, आप सुन रहे रेडियो दबंग 99.5 FM। मैं हूं मदिया मसूद। 7139744400 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने मैसेजेस भी ड्रॉप कर सकते हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, और नाइला बरकी हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हमसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करिए। नाइला, जो ब्रेक से पहले मैंने एक टीजर दिया कि वर्किंग वुमेन के साथ डिफरेंट जो स्टीरियोटाइप है वो अटैच कर दिए जाते हैं। जबकि हम 21वीं सदी में हैं, आप क्या देखती हैं वर्किंग वुमेन के साथ ये किस किस्म के स्टीरियोटाइप आपकी सराउंडिंग में अटैच किए जाते हैं बीइंग अ वर्किंग वुमेन? देखो, वर्किंग वुमेन का तो कोई ताल्लुक नहीं है, एक्चुअली आपके अपने बिहेवियर का ताल्लुक है। यू नो, इट इज हाउ यू कैरी योरसेल्फ, what kind of language you use, what kind of conversation you use, what you represent. अगर आप as I said, I mean, मुझे तो कभी ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। जैसे मैंने कहा शुरू में जो एक दो बंदे थे जो इन्होंने ऐसे किया, बट जो थोड़े से इनसिक्योर हो गए, नॉट दैट कि दे कि उनकी इंटेंशंस में कोई गलती थी, गड़बड़ थी। दूसरा ये कि आप why do you even care about what people want to say about you? अगर आप अपने आप को अच्छे काम कर रहे हो, आप you're doing a good job, you're working and you, अगर आप देखो है प्रॉब्लम क्या कि हम अभी तक ना समझो, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी अभी भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हमारी औरतें काम तो कर रही हैं और हम उनको देख भी रहे हैं, हम उनको वो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जो कि करना भी चाहिए फ्रॉम एनी वुमन जस्ट लाइक एनी मैन, कि भाई कीप योर बिहेवियर डिसेंट। और होता ये कि हम सोचते हैं कि शायद हमारे मतलब अगर कोई औरत अगर कर रही है बाहर, जैसे शी मिसबिहेव्स, शी यूजेस बैड लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप यू ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली। कॉन्फिडेंस का मतलब, बाहर निकल काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप वाहियात लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दो, लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दो, गालियां निकालनी शुरू कर दो। हाँ, मैं स्ट्रांग वुमन हूँ। बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। कॉन्वर्सेशन तो आप अपनी डिसेंट रखो, या आप लाइक बिला वजह अगर आप एंड यू फ्लर्टिंग विद मेन योरसेल्फ एंड देन यू से कि उस आदमी ने मुझे गलत बात कह दी, तो अगर आप तो वो फिर होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जो आप तो जो हरकतें कर रहे हो वो कर रहे हो, उसके साथ वो चीज अटैच हो जाती है कि देखो काम बाहर निकली है ना, काम करने लगी है तो, और उसमें फिर बाकी सारी औरतों को भी कर देते हैं कि बाहर निकलेगी तो खराब हो जाएगी। वो उसका कैरेक्टर है, वो उसकी पर्सनैलिटी है। हर औरत ऐसी नहीं है, और हर औरत, अगर आप अपने तमीज में रहोगे, अगर काम करो, अग्रेसिवली काम करो, डिसेंटली काम करो, लेकिन अपना बिहेवियर ठीक रखो एंड गिव रिस्पेक्ट, यू विल गेट रिस्पेक्ट।
Nobody will cross their lines if you don't let them to cross their lines. तो this is where the difference is. हमारा ये प्रॉब्लम हो गया कि कई सिचुएशंस में जब औरतें अपने आप को कॉन्फिडेंट कहती हैं तो वो बदतमीजी को साथ अटैच कर लेती हैं कॉन्फिडेंस के, या बेहूदगी को अटैच कर लेती हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बाहर निकल के कि मैं तो आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू एंड आई कैन बी एज रूड और एज obnoxious और एज obscene as I want to. No, then that's your personality. That has nothing to do with a working woman. और मॉडर्निटी और वल्गैरिटी में बड़ी एक थिन लाइन है. Yes. सो हम किस तरह से अपनी जो ग्रोइंग वुमेन है उसे समझा और बता सकते हैं कि इन दोनों में फर्क रखकर चलने की जरूरत है? भाई किसको नहीं पता वल्गैरिटी क्या चीज है. अब ये तो आपकी लेकिन हम मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी एज के जितने भी लोग हैं मैं एडमिट करना चाहूंगी कि हम वल्गैरिटी की तरफ ज्यादा हैं ऑन द नेम ऑफ मॉडर्निटी. मतलब अगर हम वल्गर हो रहे हैं तो हम कहते हैं हम मॉडर्न है. So, हमें इस तरह से एक्सेप्ट किया जाए. तो किस तरह से खुद को संभाला जाए कि हम मॉडर्न रहें बट वल्गर नहीं? अगेन ये तो घरों पे आ गई ना बात. इसका ताल्लुक तो घरों ने क्या आपको दी है या आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है. और फिर अगर आप वल्गर हो रहे हो, बेहुदा हो रहे हो, बदतमीज हो रहे हो तो फिर आई डोंट थिंक यू शुड बी कंप्लेनिंग. अगर आपको लोग गलत तरीके से देखते हैं, आपके गलत तरीके से आपके बारे में बात करते हैं, आपको गलत तरीके से आपको रेफरेंस करते हैं और आपको men look at it in a different way, then that's not the fault of the men. It's your behavior that you need to control. And vulgarity का भी वही है. देखो ड्रेसिंग हर चीज राइट्स भी हैं आपके, ठीक है. वुमेन राइट्स की हम बात कर रहे हैं ना. वी हैव अ राइट टू ड्रेस द वे वी वांट टू ड्रेस, बट देन सोसाइटी के यहाँ पर भी आप पाकिस्तान को छोड़ दो, वेस्टर्न सोसाइटी को देख लो आप. वेस्टर्न सोसाइटी में भी जो आप से बाहर है, ये सोसाइटी थोड़ी सी बहुत इसके दे हमसे बहुत आगे, ये हमसे भी बहुत आगे. हम अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं. हम तो अभी बड़ी स्टार्ट में हैं. जब शुरू की बातें, हम अभी उस स्टेज में हैं जब यहाँ की औरतें जो थी वो नीचे तक पांवों तक ड्रेस पहनती होती थी. राइट. हम अभी उस स्टेज में. अब हमारी वो उस जमाने में भी जब औरत का ड्रेस ऊपर आना शुरू हुआ था, नई वो शुरू हुई थी तो बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी. फिर जब औरत रेप हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि जिसकी ड्रेसिंग गलत थी इसलिए वो रेप हो गई. मगर अब से यहाँ पे औरत का कसूर नहीं, यहाँ पे मर्द का कसूर है जिसको अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहा और जिसको अपना बिहेवियर नहीं पता और जिसको जिसके अपने घर की या जो भी कह लो, उसके अपनी घर की ट्रेनिंग है, उसकी अपनी ट्रेनिंग है, उसकी अपनी एवरीथिंग इज नॉट अ वुमेन्स फॉल्ट. दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. इस्लाम में है कि औरत का अगर है कि वो अपने उसकी हया कायम है तो मर्द पे भी है कि वो अपनी नजरें नीचे रखे. इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द आप से बाहर हो जाए. सो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मॉडर्न हो रही है तो बंदे को भी का भी ये फर्ज है, मेल का भी ये फर्ज है कि वो बाय ब्रेन वो भी मॉडर्न हो. नहीं, वो मॉडर्न हो या ना हो, लेकिन औरत की रिस्पेक्ट तो करे ना. वो उस पे पड़ता है. अगर वो बदतमीजी करता है तो वो उस पे पड़ता है कि वो ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपना बिहेवियर कंट्रोल करो भाई. मतलब अगर वल्गैरिटी मतलब आप एक पार्टी को नहीं आप ब्लेम कर सकते. अगर आप मर्द औरत को कह रहे हो कि भाई शी इज आउट, तो मर्द जो है वो बेहूदगी क्यों, वाई, उसकी पर्सनैलिटी नहीं है. अपने दिमाग हर एक अपनी है ना. वी ऑल हैव टू स्टे. इखलाकियात का दामन वो भी ना छोड़ो. इखलाकियात का दामन तो दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर जैसे आदमी कोई गंदा होता है तो आप एज अ वुमन आप परे हो जाते हो. आप कहते छोड़ो परे, फजूल सा आदमी, घटिया सा आदमी, इससे क्या मुंह लगना, इससे क्या बात करनी है. दैट्स माई एटीट्यूड. बदतमीज आदमी तो छोड़ो परे, इससे क्या बात करनी है. उसको और दूसरों को भी कहते हैं फजूल सा आदमी, इससे क्या मुंह लगना. तो एक जो परसेप्शन है कि औरत के लिए जो ट्रबल मेकर है वो दूसरी औरत ही है. तो हम किस तरह से compete करने के बजाय हम एक दूसरे की सपोर्ट कैसे बन सकते हैं? Again, it all comes back to personally. It all comes back to your own security, that you're secure in yourself. हम इनसिक्योर इतने होने की क्या जरूरत है? अगर आप अपने काम अच्छा कर रहे हो, you're doing well, you're working, you're successful, कोई और सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है. उसको भी सपोर्ट दो. उसको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है. दुनिया में अल्लाह का रिस्क सबको मिलना है. सबने वी ऑल आर गोना डू वेल. हमें सबको खाने पीने को भी मिलना है और हमने हमारी अपनी एबिलिटी के हिसाब से हमें मिलना है. इफ यू गोना वर्क हार्ड वी गोना गेट व्हाट वी डिजर्व. तो आप दूसरे को भी आगे बढ़ने दो. बल्कि जितनी ज्यादा औरतें आगे बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा औरतें आगे सक्सेसफुल होंगी, सारी औरतें सक्सेसफुल होंगी, सारी औरतें तगड़ी होंगी और हमारी सोसाइटी विल बी अ बेटर सोसाइटी. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. मुझे कोई कहता है मैंने रियल एस्टेट करना, मैं लड़कियों और औरतों कहते हैं जरूर करो. व्हाई नॉट? वर्क हार्ड एंड डू इट. अब इसमें इनसिक्योर होने की क्या बात. हो जाता है कि एक औरत ही औरत को टफ टाइम देती है. वो अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहूंगी पेटी. दैट्स पेटी बिहेवियर.
ایک تو وہ ساس اور بہو کے قصوں میں پڑ جاتی ہیں نا, وہ اس میں آ جاتا ہے کہ عورتیں عورتوں کو ٹف ٹائم دیتی ہیں. میرا خیال ہے وہ قصہ ہے, بٹ وہ بھی ریلیشن شپس کی اپنی کہانی ہے. یو نو اگر یا فرینڈز میں کئی دفعہ جیلسیز آ جاتی ہیں, کچھ ہیومن نیچر بھی ہے کہ جیلس ہونا بھی تھوڑا سا ہیومن نیچر ہے. تھوڑے سے آپ انسیکیور ہو جاتے ہو, تھوڑے سے آپ کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہو. لیکن اگر ہم اگر ہو رہے ہو تو چیک کرو, چیک یور سیلف. آئی مین اف یو وی آر گڈ فرینڈس, اور اگر سچی بات ہے اگر کوئی ایسی غلط آپ کی فرینڈ ہے تو چھوڑ ہی دو اس کو. only have positive people around you. That's my motto. If you're positive, people around you will stay positive too. Okay. آپ کے اوپینین میں ہمارے جو انڈیویجول ایکشنز ہوتے ہیں, کانورسیشنز, بیہیویئر, ہمارا مائنڈ سیٹ, اس کا کتنا امپیکٹ ہے سوسائٹی پر؟ دیکھو تھوڑا سا نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. یور تھنکنگ, ایک بڑا آئی ہرڈ اے ویری بیوٹیفل کوٹ فرام سمن, یور تھنکنگ, یور تھاٹس بلڈ یور ہوم. ٹھیک ہے, آپ جو بھی سوچ رکھتے ہو, اب جب کچھ لوگوں کے گھر آپ جاتے ہو, یو گیٹ ویری انکمفرٹیبل. They could be your friends, they could be your relatives. You know آپ کا دل کرتا ہے کہ اچھا انکمفرٹیبل ہو کے آپ بیٹھ کے بڑے فارمل سے بیٹھ کے آ جاتے ہیں. اور کئی گھر ایسے ہیں جہاں پہ you can go any time, you can enjoy, you can have fun, you know, اور آپ آرام سے. یہ وہ ان گھروں کے ماحول ہے. آپ جو گھر میں جو رہ رہے ہیں, جو جن کا وہ گھر ہے, یہ ان کی تھنکنگ ہے. تو وہ اپنے گھر کو, اگر وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, یا انسیکیور ہیں, یا یو نو ٹینشن ہے ان میں, تو وہ گھر کے ماحول میں بھی آئے گی. اسی طرح سے ہم سوسائٹی کو بناتے ہیں. اگر ہماری سوسائٹی میں کانسٹنٹلی نٹ پکنگ ہے, کانسٹنٹلی ہم جیلس ہیں, کانسٹنٹلی تو ہماری سوسائٹی ساری وہ بن جائے گی, اور ہمارے ارد گرد لوگ, ہم وی کیری دیٹ ایئر ود اراؤنڈ اس, ود دیٹ اورا از اراؤنڈ اس. اور جس کی وجہ سے پھر تمام باقی سوسائٹی میں بھی وہ چیزیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں, برائیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں نا. آپ کے اس برائی کو, اور برائی کا پرابلم یہ ہے کہ آئی بلیو کہ جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس کے خلاف بولو ضرور. ہیو دا گٹس ٹو اسپیک آؤٹ اینڈ سے کہ یو نو واٹ, یو رانگ. تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے, تو کیا اسلام میں ہے کہ اگر آپ بول نہیں سکتے, چینج نہیں لا سکتے, تو آپ اس کے بارے میں بولو. اگر مطلب اگر یو کانٹ ورک ٹوورڈز برنگنگ اے چینج, نہیں تو پھر اس کے خلاف بولو. اگر بول نہیں سکتے تو سوچو, ایٹ لیسٹ ہیو دس تھنکنگ دیٹ دس از رانگ اینڈ ڈونٹ بی پارٹ آف دیٹ. بالکل نام نہ رہے کہ اوکے جو بھی ہو رہا ہے دیکھا جائے گا, جو بھی ہوگا. ہاں نہیں یہ تو ٹھیک ہے بھائی, اب اس کا معاملہ ہے, ہم کیا کریں. نہیں اس کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آگے بڑھ بڑھ کے آپ تک آئے گی. دیکھو نا, ہماری بہت ساری برائیاں ہمارے بڑھ بڑھ کے یہاں تک آ گئی ہیں, تو ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی. لوگوں نے ہمارے سے کرپشن, پاکستان کی کرپشن پہ غور کر لو نا. اب ہماری کرپشن یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے پولیٹیشینز, ہماری سوسائٹی اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ وہ چیز آ گئی. ہم نے کر لیا کہ پاکستان ایک کرپٹ کنٹری ہے. وائی؟ اٹس ناٹ. عام بندہ تو کرپٹ نہیں ہے نا, لیکن ہم نے اس کی طرف ایک ایکسپٹینس کر لی ہوئی ہے. That is what needs to change. We can't accept bad behavior. We can't accept, because then it becomes part of our society. بالکل. عورت کو خدا نے بڑا ہی حسین اور خوبصورت بنایا ہے, یہ شکل اور وجاہت سے نہیں, کردار اور اس کی اخلاقیات سے. اور آف کورس ایک عورت کی جو ایجوکیشن ہے, تعلیم یافتہ ہونا, اس کے پورے معاشرے کا عکاس بن جاتا ہے. ایک بریک کے بعد میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ بینگ اے ویمن, آپ کو اپنی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ یہ اس کا آنسر میں آپ سے لوں گی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. اور لسنرز ہمیں سنتے رہیں, آپ سن رہے ریڈیو دبنگ 99.5 FM. آپ اپنا کامنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بائی کالنگ اور ڈراپنگ کا واٹس ایپ آن 7139744000. اسٹے ٹیون ٹو ریڈیو دبنگ 99.5 FM. 7139744000 پر آپ ہمیں واٹس ایپ اور کال کر سکتے ہیں. اور نائلہ برقی ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں. نائلہ بتائیے کہ ہر عورت کو اپنے بارے میں کوئی بات خاص لگتی ہے اور بہترین لگتی ہے. بینگ اے ویمن, what is your favorite thing about a woman? about women, اور یا اپنے بارے میں؟ اپنے بارے میں بھی. اور ایک آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت, اگر میں یہ کوشچن اگر میں اپنے آپ اوپر سیٹ کروں کہ سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے, عورت کا مطلب ہی یہی ہے ڈھکی چھپی, نازک اور خوبصورتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے پیاری بات ہے. اور عورت ہی سوسائٹی کو تو لے کر چل, اور سوسائٹی عورت کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. دیٹس وٹ. ہاں, عورت کا دیکھو, عورت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. عورت کی اور سچی بات ہے, مجھے عورت کی امپورٹنس ابھی بڑی احساس ہوا اس بات کا. کچھ سال, 2-3 سال ہوئے ہیں, 3-4 سال ہو گئے اب تو. دو ویری کلوز فیملی ممبرس, ان کی بیویاں فوت ہو گئی, یو نو, ویری کلوز فیملی ممبرس آف آر, اور وہ آدمیوں کے گھر ختم ہو گئے.
लिटरली खत्म हो गए, मतलब वो दोज मेन लिटरली फेल अपार्ट। बहुत लंबी शादियां थी, 40-50 साल की शादियां थी, तो वो जब उनकी बीवियां फौत हुई हैं तो वो तो बिल्कुल यूजलेस हो गए, लिटरली जैसे दे वर लॉस्ट कम्प्लीटली। और उन बच्चे भी आपके बिखर जाते हैं। औरत जो है वो न्यूक्लियस है पूरे घर की, पूरी फैमिली की। आपका मियाँ भी आपके इर्द गिर्द घूमता है, आपके बच्चे भी आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, घर बनता आपसे, घर की सारी रौनक आपसे है, हर चीज आपसे चलती है। यू नो, लोग घर में आपके आते हैं तो वो अगर औरत अच्छी मिलने वाली होगी तो लोग आपके घर आते हैं, अगर औरत मिलने वाली नहीं होगी तो लोग आपके घर नहीं आते। जमाना कट जाएगा। और औरत है जो सारी फैमिलीज को जोड़ती है, औरत है जो सारे ससुराल को जोड़ती है या काट दे। मतलब देखो ना, वो कहते हैं ना कि कहीं आप देखो कि फैमिली में मामू की शादी हुई, भाई की शादी हुई और वो कट गए, बीवी ने काट दिया सारों को, या ऐसी आई जिसने सारे सबको जोड़ दिया। बना लिया। कितनी इंपॉर्टेंट है औरत, कितना इंपॉर्टेंट है औरत का रोल। आदमी तो ऐसे ही साथ साथ ही चलता है। वो कहते हैं ना कि बेटी की शादी की तो बेटा मिल गया, और बेटे की शादी की तो बेटा भी गया। Assumption about women, I think the assumptions that women are weak, that women are that the women can be treated whichever way, या औरत अपने आप को कमजोर समझे इतना कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकती, या वो अपने राइट्स के लिए खड़ी नहीं हो सकती, या वो अपने डिमांड नहीं कर सकती। और मैं गलत बातों के लिए नहीं मैं कह रही, मैं सही बातों के लिए कह रही हूँ कि औरत को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, औरत को अपना स्टैंड लेना चाहिए, औरत को तगड़ा होना चाहिए। तगड़ी होगी तो उसका घर भी अच्छा चलेगा, उसकी अपनी लाइफ भी अच्छी चलेगी, उसकी जिंदगी स्मूथ चलेगी। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड फॉलो योर ड्रीम्स and go after what you really want in life. Go after it fully. देखो सारी दुनिया आपके साथ चलेगी। बिल्कुल। तो आपकी कोई थॉट्स या कमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें जो ग्रोइंग वुमेन है उनके लिए? भाई मैं तो मेरी अपनी जिंदगी से है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत आए, हमने भी बहुत देखे, ज़ाहिर शादी में भी देखे, फाइनेंशियली भी देखे, ट्रेजेडी भी जिंदगी में हुई। आप अपने आप को आगे चलाओ, अपने आप को बिलीव करो व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड कैरी योर फैमिली विद यू। किसी को छोड़ना लड़ना, अगर अपने में बिलीव करोगे तो सब आपके साथ चलेंगे, आपके दोस्त भी आपके साथ चलेंगे, आपके मियाँ भी आपके साथ चलेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ चलेंगे, और आपके ससुराल भी आपके साथ चलेगा। तगड़ा रखो एंड सेट बाउंड्रीज. Set your boundaries for everything. Nobody can interfere in your family life. Nobody can interfere in your personal life. And and अगर आप अपने सही किस्म की बाउंड्री सेट करोगे, अगर अपने सही किस्म के गोल्स सेट करोगे, and always stay positive. Don't say कि मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकती। औरतों में हमारी इस चीज में बड़ी घूमती हैं कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, या डिप्रेशन की तरफ, या वो एक दूसरे को रोकती हैं कि तुम ये नहीं। नो, आप हर चीज कर सकते हो। Anything that you want, set a goal for yourself, go ahead and do it. और आजकल तो सारी और चीजें भी और खुलती जा रही हैं, तो if you want to be a Instagram star, be it. As long as you're doing it not in the wrong way, everything, do it in the right way. Keep your religion, keep your society, keep your decency, keep your womanhood together, and achieve the stars. Go up, आसमान को छुओ, कोई नहीं रोक रहा। Alright, जब हम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, यहाँ से जब वो देखते हैं यूएस की वुमेन को, वो कहते हैं कि यहाँ की औरत को इनकी सोसाइटी ने मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाया, बट जब यहाँ की औरत से पूछते हैं तो उनको भी कंप्लेंट्स हैं। ऐसा क्यों? वो तो ह्यूमन नेचर है ना कि हर जगह कंप्लेंट्स हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि आपने कंप्लेंट तो हर हाल में करनी है ना। अब हम किसी को देखते हैं, हम कहते हैं यार वो कितना सक्सेसफुल है, और उसको पूछो तो वो पता नहीं कितने दुखड़े अपने रोएगा। तो कॉल प्लीज आप दोबारा से कॉल कीजिए तो आपकी आवाज हम प्रॉपर। वो कह रही थी कि एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, विच इज फाइन, मगर थोड़ी सी ना किसी वक्त रिकॉग्निशन की भी जरूरत होती है। एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, एंड दैट इज व्हाई वी आर व्हाट वी आर सेइंग इज कि जिस तरह एवरी डे इज अ मदर्स डे एंड एवरी डे इज अ फादर्स डे, मगर जैसे बर्थडे है, हम रोज ही जिंदा है, मगर आप बर्थडे मनाते हो तो अच्छा लगता है ना, किसी को इम्पोर्टेंस देते हुए। हाँ, तो इसी तरह से बाकी चीजें तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देने में क्या हर्ज है, रिकॉग्निशन देने में। बिल्कुल। अभी देखते हैं कि दोबारा हमारे साथ कॉल पर कौन है। हेलो। बिल्कुल जी, औरत का दिन ऑफ कोर्स हमें इसी तरह से सेलिब्रेट कर, और माँ से ही शुरू होती है वो बात सारी। ऑफ कोर्स जैसे कि नायला आप में हम बात कर रहे थे कि एक जब हम
एक विमेन को चार्ज दिया जाता है एक फैमिली का, तो ऑफ कोर्स वही निखार लेकर आ सकती है या फिर बिगाड़ लेकर आ सकती है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो कॉलर्स भी उसी थॉट पर, और शायद वो यही बात कहना चाह रहे थे। ऑलराइट नायला, वो हम बात कर रहे थे कि सोसाइटी में कंप्लेन्स, ऑफ कोर्स यहाँ की जो डेवलप कंट्री की विमेन है वो भी कंप्लेन समहाउ करती है कि जी नहीं मेरे पास प्रॉपर राइट नहीं है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, ये फितरत है इंसान की शिकायत हो जाना। इंसान की फितरत है ना, वो किसी हाल में खुश नहीं है, लेकिन वही बात है कि आपको अब हम ये इन औरतों को पूछे कि भाई तुम जरा पाकिस्तान की औरतें या इंडिया की औरतें या आप उधर जाके देखो तो तुम लोग तो यू नो कितने जिंदगी, तो यू हैव सो मेनी राइट्स एंड, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी चीजें लॉज की इम्प्लीमेंटेशन से आती हैं, एंड दैट इज वेयर आवर कंट्रीज आर बिहाइंड। पाकिस्तान में ये जो क्या वो जो बनी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ये हमारे लॉज की कमजोरी है ना। लॉज तो हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। या अभी अल्लाह माफी, मैंने इंडिया का देख रही थी कि वो जज ने कहा है कि आदमी को कि तुम रेप से, तुमने जेल से बचना तो जिस औरत को रेप किया उससे शादी कर लो। अब ये बेवकूफों वाली बातें, ये मतलब इससे, इन चीजों से आप अपनी सोसाइटी को नुकसान दे रहे हो। इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए हमें। तो हमारे जो तो कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे, ये है कि लॉ सारे सब जगह, लेकिन फिर भी इंसान की फितरत, उसको जितना मिल जाता है उसको उससे और ज्यादा चाहिए। तो लेकिन मैं समझती हूँ बहुत ही काबिले तारीफ है वो सब खवातीन। देखें इंडिया से भी औरतों ने बड़ा नाम कमाया दुनिया में, बेहतरीन, मतलब इतना कि अब वो लोगों के लिए रोल मॉडल है। ये छोटी छोटी जो चीजें जो चेंज करने की कोशिश करते, जो अभी आपने एग्जांपल दी कि एक आप कह लें एक नाकाम कोशिश है औरत को लेट डाउन करने की, बट इवेंचुअली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कलेक्टिव वे में इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वहां पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम हर साल। इसी तरह से पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है इंडिया के मुकाबले में, वहां पर लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं है। वो क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स ने इस चीज पे मेहनत की है ना, कि उनको सूट करता था कि लोग कॉम ना पड़े। अब मैं बोर्ड पे हूँ तो उसको चलाने वाली कौन है, वो ठीक है कि वो इमरान खान की यूनिवर्सिटी है, लेकिन चलाने वाली अलीमा खान है, एक औरत है जो चाहे इमरान खान की बहन। चलो आप कॉल ले लो, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ जी डंडा सबका पीर है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर बड़े राइट्स मिले हुए हैं और वहां पर नहीं है, ये डंडा सबका पीर है। यहाँ पर डंडे ने सबको सीधा किया हुआ है, रूल्स बनाए हुए हैं। अगर यही रूल्स डेवलपिंग कंट्री में बन जाएंगे तो वहां पर भी बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सीधे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे देखो ना, आप सड़क खाली होती है, आप लाल स्टॉप साइन पे रुकते हो कि नहीं रुकते हो? हाँ, यहाँ पे आप एक सेकंड में खड़े हो जाते हो, स्टॉप साइन पे कोई नहीं होता सारी सड़क पे, फिर भी आप, क्योंकि आपको पता है कि आपको टिकट मिल जाएगा और आपको $200-250 देने पड़ जाएंगे। वहां पे आप लाल बत्ती भी क्रॉस कर जाते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, टिकट मिलेंगे सबको तो सब सही हो जाएंगे ना। और अगर कोई रोक भी लेगा तो ये कहना बड़ा आसान है, जानते हैं मैं किसको जाने वाला हूँ। हमारे मुल्क के तो खैर इश्यूज बहुत ज्यादा है, उस पर भी किसी दिन डिस्कशन करेंगे कि ठीक है, पॉलिटिकल एंगल से डिस्कशन करेंगे। आई वुड लव टू डू दैट। लेकिन मैं जो बात कहने लगी थी उससे पहले, इनके कॉल से पहले, कि अलीमा खान एक औरत है वो जो नमल नॉलेज सिटी की सारी दुनिया में जाके फंड रेजिंग करते हैं, जिसके साथ हम भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। जो तो मतलब वो इतने और बड़े हर किस्म के वो अकेली डील कर रही होती है आदमियों के साथ। शी इज रनिंग अ फुल थिंग। ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो रन कर रही है, उसके फंड रेजर्स वो करती है, उसके इवेंट्स वो उसके होती है, शी इज द मेन स्पीकर। कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज शी इज एक पर्पस के साथ वो चल रही है, एक वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है, उसको पूरी इज्जत मिलती है। सो हमारे, बल्कि मैं तो कहूंगी कि हमारे लोग, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में बहुत इज्जत है औरत की, एज लॉन्ग एज यू नो कि आपको अपना कैरी ऑन, आप भी अपने आप को कैरी कर सको प्रॉपरली। ऑलराइट, लास्ट आपका कोई मैसेज हमारे रेडियो दबंग 99.5 के लिसनर्स के लिए, कि जो इस वक्त खवातीन हमें सुन रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे पर? मैं भाई खुश रहो, अपनी लाइफ के जो है ना गोल्स, उनको बनाओ, उनको लिखो और उनको फॉलो करो। यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव, यू कैन रीच द स्टार्स इफ यू वांट टू, बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड और अपने पे ध्यान करो। और इधर उधर की ना फजूलियात, दूसरी औरतों की फिक्र ना करो, लोगों की बातों की फिक्र ना करो, अपने कॉन्फिडेंस से और अपने पॉजिटिविटी से आगे बढ़ो, एंड यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट टू। Alright, with this message, thank you so much नायला बरकी, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया हमारे लिसनर्स को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई। आई रियली एंजॉयड दिस, और एंड आई होप कि जितने भी लिसनर्स ने हमें ये सुना उनके लिए डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो, और जो भी एज इंस्पिरेशन हमें लें आपकी डिस्कशन को ले, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारी खवातीन मेरे जैसी होंगी जो कि बिल्कुल इस सोसाइटी में नए हैं और उन्हें कोप अप होना है, वो एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच नायला, आप हमारे साथ थी। और जाते जाते मेरा जो मैसेज है वो लिसनर्स के लिए वो
यही है कि एक जो थोड़ी सी सेंस है वो हमें प्रिवेल करने की जरूरत है। कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है और हमें कलेक्टिव वे में एफर्ट करने। ऑफ कोर्स देखिए, कंप्लेन करना ये हमारी इंसानी फितरत है, हमें शिकायत हो जाती है, लेकिन हमें अपनी जो डेस्टिनेशन है और जो हमारे गोल हैं हमें वो भूलने नहीं चाहिए। हमेशा जिंदगी में गोल ओरिएंटेड रहिए और एजुकेशन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को लेकर चलिए सेंसिबल वे में, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी फैमिली वैल्यूज को और अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली, जो भी आपकी जिंदगी में जो मर्द हजरात हैं उन्हें प्राउड फील कराइए। छोटी सी छोटी गलती से बचिए। वो कहते हैं ना, फूंक फूंक के कदम रखें, क्योंकि हम पर सोसाइटी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। विद दिस मैसेज मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए और आपको क्या करना है, आपको सुनते रहना है रेडियो दबंग 99.5 FM, क्योंकि 24/7 हमारी ट्रांसमिशन ऑन है और अब से कुछ देर में आपको आरजे गौतम ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। गुड बाय। गुड बाय।